the Employees Pension Scheme 1995. On 4th November 2022, the Honorable Supreme Court has delivered a judgment in respect of Employees Pension Scheme 1995 regarding the higher pension on the basis of actual salary. The judgment is affecting millions of workers in the country, those who are in the service and also those who are out of service who have already opted pension. But it is quite unfortunate to note that the Employees Provident Fund Organization has not yet taken any step so as to implement the order of the Supreme Court judgment. That will be adversely affecting the poor workers. 70 लाख EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार से भिड़े सांसद NK प्रेमचंद्रन जी। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते की रखी मांग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार अमल क्यों नहीं कर रही? आखिरकार कब बढ़ेगी आपकी पेंशन? ये सवाल हर एक पेंशन धारक, हर एक विधायक, हर एक सांसद और हर एक विपक्षी नेता की जुबान पर है कि आखिरकार सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी। हर किसी की एक ही डिमांड है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन को महंगाई के अनुरूप बढ़ाया जाए, साथ ही में उनके और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएं। हर एक सांसद, हर एक विधायक इस डिमांड को सरकार के सामने उठा रहे हैं। स्पेशली ये मुद्दा तब से जोर पकड़ गया है जब से सरकार ने UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके बाद से ये मुद्दा जोरों पर है। इसी बीच माननीय सांसद NK प्रेमचंद्रन जी ने भी हमारे EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी इसको अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा। गौरतलब है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए फैसले को सुनाए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इतने समय बीत जाने के बाद भी EPFO की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिससे कि हर एक पेंशन धारकों के मन में ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिरकार सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी भी या फिर नहीं करेगी। ऐसे में माननीय सांसद NK प्रेमचंद्रन जी ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार कोई भी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है। आखिरकार कब सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी। आप एक बार उनका ये भाषण सुने। श्री NK प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Chairman sir. I would like to raise a very serious matter of urgent concern in which the involvement of the Ministry of Labour is required, that is regarding the Employees Pension Scheme 1995. Honourable Chairman, it may kindly see, on 4th November 2022, the Honourable Supreme Court has delivered a judgment in respect of Employees Pension Scheme 1995 regarding the higher pension on the basis of actual salary. The matter was heard by various High Courts of India, Kerala High Court, Rajasthan High Court, Delhi High Court, and delivered their judgments. Against the judgments of these various High Courts, Government of India, Labour Ministry and Employees Provident Fund Organization has preferred a special leave appeal, and that appeal has been rejected and dismissed by the learned Supreme Court, and subsequently review petition was filed and the review petition was further allowed and they delivered a detailed judgment. Sir, the judgment is affecting millions of workers in the country, those who are in the service and also those who are out of service who have already opted pension. In such a situation, it is having series of ramifications are there as far as the judgment is concerned. So my point is, as per the judgment of 2022, that is Employees Pension Scheme, those who have not opted for higher pension on the basis of the actual salary, they are entitled to opt for the pension within 4 months from the date of the judgment. So the date of judgment was on 4/11/2022. But it is quite unfortunate to note that the Employees Provident Fund Organization has not yet taken any step so as to implement the order of the Supreme Court judgment. That will be adversely affecting the poor workers. And another point is, those who have already retired,
prior to 1/9/2014, they are not entitled for opting higher pension. But at the same time, sir, 1 second. But at the same time, the R.C. Gupta judgment is approved and ratified in the judgment. So there is an ambiguity as far as the employees' pension scheme is concerned. So my point is, the government of India should come out with a clear statement as far as the implementation of the Supreme Court judgment regarding implementation of the order, as well as those who already retired before 1/9/2014. When I would urge upon the Labour Ministry to come out with a statement for the implementation of the judgment at the earliest, so as to protect the interests of the millions of workers. गौरतलब है दोस्तों कि देश भर के 70 लाख से भी ज्यादा EPS 95 पेंशन धारक परेशान हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी EPFO की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। क्या होगा उनकी पेंशन का, ये सवाल हर एक EPS 95 पेंशन धारक के मन में गूंज रहा है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। हर एक पेंशन का एक ही सवाल है कि आखिरकार सरकार उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी। पिछले दिनों उन्होंने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि पेंशन धारकों की पेंशन को 7500 रुपए प्रति महीना किया जाएगा। साथ ही में उनके और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन क्या सरकार इसको अमल में लाएगी या फिर चुनाव के लिए ये सिर्फ एक आश्वासन ही रह जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में हर एक सांसद विधायक EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाता आया है। माननीय सांसद NK प्रेमचंद्रन जी ने भी सरकार से सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी सरकार उसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं ले रही है। आखिर वो समय कब आएगा जब पेंशन धारकों को उनका हक मिलेगा, महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन मिलेगी। कब तक सरकार के सामने यूं ही पेंशन धारक अपनी पेंशन की गुहार लगाते रहेंगे और सरकार हर बार आश्वासन देकर मुकरती रहेगी। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय सांसद NK प्रेमचंद्रन जी का कि उन्होंने हमारे EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सरकार के सामने रखा। अगर आप भी सहमत हैं उनकी बातों से और समर्थन करते हैं उनका, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके लिए थैंक्स जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे EPS 95 पेंशन धारकों को उनका हक जरूर देगी और महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।